I think for me, Mohan Bagan is everything, in regards of football or fans or whatever it is. Because जब भी हम बाहर जाते हैं, whenever we step onto the field wearing that jersey, the players, the fans, the management, everyone roots for us. It's a different. मुझे तो बड़ा गोल करने का मजा क्या है वो बताइए। वो फीलिंग अलग है, वो कोई मैच में नहीं आती है। अगर आप कोई भी मैच में मारो, चाहे वो फाइनल क्यों ना हो, मुझे नहीं लगा कि जो डर्बी खेलने में जो मजा है और उसमें गोल मारना तो मतलब सोने पे नहीं, मेरे को नहीं लगता कि नेचर मेले वो दिख जाता है। हम जब बैठते हैं ड्रेसिंग रूम में या वार्म अप के बाद आते हैं, वो सबकी आंखों में दिख जाता है। वो गुस्सा दिखता है, वो पैशन दिखता है, वो सब दिखता है। भले वो मैनेजमेंट क्यों ना हो, कोई भी हो, वो रहते हैं हमारे साथ। दे आर ऑलवेज आफ्टर अस, कि करना है, ये करना है, वो करना है। दे आर ऑलवेज गाइडिंग अस, दे आर ऑलवेज रिमाइंडिंग अस दैट दिस इज नॉट जस्ट नॉर्मल गेम। हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल conversation with a special player. But have I given you the microphone? Yes. That's me. Sorry about that. But Anirudh Thapa has enthralled us all. Multiple goals, we have seen versatility, energy, resilience, and we are going to talk about all of that. पहला बात तो ये है कि पूजा आ रहा है, क्वेस्ट मॉल में है, फूड कोर्ट में। आप एक ट्राई करोगे, प्रैक्टिस वैक्टिस सब कुछ तो है। कोच साहब शायद डांटेंगे भी, बट एक ट्राई करना है तो एक ट्राई करके देख लीजिए। आप कल 2 घंटा ज्यादा जिम कर लेना, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बिल्कुल। बट मैं आपको एक देता हूँ, डायनामाइट प्रॉन्स है, आप ट्राई कर लो। डायनामाइट प्रॉन्स, आप प्रॉन्स खाते हो? नहीं, हाँ जी बिल्कुल खाते हैं, बट नाम से थोड़ा डायनामाइट। हाँ, ये क्या है भाई? आपका जर्सी में मैंने, अरे बाप रे बाप, there you go. Thank you. I balanced it much like your ball skills. Perfect. But पहला बात ये, मुझे ये बताइए, what does Mohan Bagan mean to you? I think for me, Mohan Bagan is everything, in regards of football or fans or whatever it is. Because जब भी हम बाहर जाते हैं या whenever we step onto the field wearing that jersey, the players, the fans, the management, everyone roots for us. It's a different feeling. It's not just any other club or any other game we are going for. क्योंकि वो फीलिंग पता है हमें, जब हम मैच के लिए जा रहे होते हैं या फिर स्टेडियम में होते हैं, the fans are there. When we step out, going out to any place, just on an off day, or जहाँ पर भी, we see fans, they greet us. So we know how it is special to play for the club, to wear that jersey. And everyone who represents the club, I think it's an honor for us, to do that, because I don't think many of the players are fortunate enough to play for this club, and I'm one of those. So yeah. Huge moment in the sense AFC is coming. No Indian club has really had a great mark in AFC. How are you looking at it, and what are the possibilities you reckon? Like you said, no club has done that, so we are trying to do that with signing great players. We know how important it is to play at that level, क्योंकि उस लेवल में खेलना आसान नहीं है। और it's not just for us, it's for the Indian football, it's for everyone. It's an opportunity for every club, to be there, especially from India, because we are gonna represent Indian football. So I think वो एक बहुत बड़ा स्टेप है, ताकि हम भी चाहते हैं कि many more clubs go there to represent India and to do good for the betterment of Indian football and for the players as well. So I think we are looking forward to it, and we are trying to give our really best to reach wherever we can, whether it's the finals or win the trophy. We just gonna do that. मेहताब, अभिषेक, रॉबसन, 3 नया प्लेयर्स, इनके बारे में आपने तो प्रैक्टिस किया है इनके साथ। इम्प्रेशंस? मेहताब के साथ आपने नेशनल टीम खेला हुआ है, अभिषेक के साथ भी आप खेले हुए हो, बट रॉबसन का भी पहला इम्प्रेशंस? I think they all are fantastic players and even fantastic human beings. जब वो लोग आए तो they were really, मतलब इतना जेल हो गए वो एक दूसरे के साथ। जो उनका बिहेवियर था, मतलब it was not like कि they have come from outside और कुछ ईगो और वो सब नहीं, बिल्कुल नहीं था। They wanted to do well from the first day and from the first session। वो जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, जो एटीट्यूड रहा है towards the training और towards the player, towards the management और the players, वो बहुत ही प्रोफेशनल था और काफ़ी पॉजिटिव भी था। क्योंकि एक टीम में अगर पॉजिटिविटी नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो आए हैं और उन्होंने आते ही अपना पॉजिटिव साइड्स
जो स्प्रेड किया है टीम में, तो एक इन्वायरमेंट जो है वो टीम में अभी बहुत अच्छा है, वो बहुत पॉजिटिव है और उम्मीद करते हैं ऐसे ही रहेगा आगे भी। एक ISL का सवाल पूछ लेता हूँ। देखिए इतना क्या बोल सकते हैं, अनसर्टेनिटी था लीग को लेकर, अभी ग्रेजुअली वो खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी आ गया कि कमर्शियल राइट्स टेंडर फ्लोट हो जाए, टूर्नामेंट दिसंबर से चालू होने का है, हो जाना भी चाहिए। आप ISL को कैसे देखते हो? मोर ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए लास्ट डार्बी में मोहन बगान डिड नॉट डू वेल अगेंस्ट ईस्ट बंगाल। आपका वो गोल के बाद सबने सोचा था कि इक्वलाइजर भी आ जाएगा, बट गिवन द ISL, द इम्पोर्टेंस ऑफ द डार्बी, सो ISL एंड द डार्बी। So firstly, I'll talk about ISL that, many livelihood depends on ISL, whether it's the players or the management or the people working behind the league. बहुत लोग जुड़ चुके हैं फुटबॉल से, बहुत लोग जुड़ चुके हैं ISL से, फैंस जुड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत लोग अफेक्ट कर रहे हैं, प्लेयर्स हो चाहे कोई भी हो, और सब वेट कर रहे हैं कि just to start the league as soon as possible, because everyone is waiting for Indian football to restart, because the magic is there. When the teams are playing, whichever club it is, fans are there to support us, fans are there to support their favorite team, and to enjoy football. I think that is something really important, because football is not just about us or any other human. It is about the culture that brings in, क्योंकि छोटे से बच्चे से लेके हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग लोग भी फॉलो कर रहे हैं, वो पैशन रहा है, तो आई थिंक वो पैशन बरकरार रहना चाहिए। और रही बात डर्बी तो आई थिंक इट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन सिंस एजेस। मुझे तो बड़ा गोल करने का मजा क्या है वो बताइए। वो फीलिंग अलग है, वो कोई मैच में नहीं आती है। अगर आप कोई भी मैच में मारो, चाहे वो फाइनल क्यों ना हो, मुझे नहीं लगा कि जो डर्बी खेलने में जो मज़ा है और उसमें गोल मारना तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। बट हाँ, क्योंकि whenever we are going, especially on derby days, fans are there to cheer us. Obviously fans उनके लिए भी होंगे, बट जो हमारे होटल से लेके स्टेडियम तक जो हम इन्वायरमेंट देखते हैं, जो वार्म अप में इन्वायरमेंट रहता है, वो अलग है, वो फीलिंग अलग है। तो वो फीलिंग, वो मज़ा जो है, वो कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है और थोड़ा डर भी लगता है कि भाई क्या होगा, क्योंकि डर्बी एक छोटा गेम नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट just about us or our teammates, because everyone is involved. Whole of Bengal is involved. Whole of Bengal obviously, और बाहर से लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये दिस इज़ नॉट जस्ट नॉर्मल गेम, इट्स अ बिग गेम, तो उसका मज़ा अलग है। वो मतलब नो वन, आई डोंट थिंक सो, जो खेला है या खेलेगा वो एक्सप्लेन कर सकता है ये चीज़ की क्या चीज़ है डर्बी। तो आप ये जो बोल रहे हो इट्स नॉट अ नॉर्मल गेम, आपके लिए डर्बी के लिए एक अलग जोश आता है, स्पेशल आता है? बिल्कुल, वो मेरे लिए नहीं, मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ मेरे लिए, वो दिख जाता है। हम जब बैठते हैं ड्रेसिंग रूम में या वार्म अप के बाद आते हैं, वो सबके आंखों में दिख जाता है। वो गुस्सा दिखता है, वो पैशन दिखता है, वो सब दिखता है, भले वो मैनेजमेंट क्यों ना हो, कोई भी हो, वो रहते हैं हमारे साथ। तो दे आर ऑलवेज आफ्टर अस, कि करना है, ये करना है, वो करना है। दे आर ऑलवेज गाइडिंग अस, दे आर ऑलवेज रिमाइंडिंग अस दैट दिस इज नॉट जस्ट नॉर्मल गेम। तो वो फीलिंग अलग है। बैक टू AFC, क्या आपको लगता है जो टीम अभी बन रही है, मोलिना इस टीम के साथ अभी 2 साल है, क्या आपको लगता है एक्चुअली वी हैव द पोटेंशियल एंड द टीम टू डू वेल? If we talk about the potential, I think last year also we had the potential, but unfortunately we were not able to perform, because if we would have performed there, we would have got to know कि हमारे पास क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वी वुड हैव दैट आइडिया। इस साल जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस हमने लास्ट ईयर दी है, वी आर द सेम बैच, 1 or 2 चेंजेस, स्पेशली वी आर गॉट मोर गुड प्लेयर्स, स्ट्रॉन्ग हुई है टीम, स्ट्रॉन्ग हुआ है स्क्वाड, कंपटीशन बढ़ चुका है। तो आई थिंक वी कैन डू वेल बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ द टीम, एंड इफ वी यूटिलाइज द प्लेयर्स with a smart move, I think we can do better, because the positive is that squad same है, coach same है, idea same है,
so half of the team knows कि हमें क्या करना है, तो वो चीज़ एक पॉजिटिव है। अब ये है कि हाँ बहुत लोगों ने वहाँ पे खेला नहीं है, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक दैट मिक्स एंड मैच would be great to perform at that level and everyone is excited for that. कोच के बारे में थोड़ा सा बताएं, अगर what is special about Molina because so much success at the national level, ISL level, पहले भी उन्होंने जब वो आए थे उनका सक्सेस था, अभी भी उनका सक्सेस है, having played under so many different coaches, your thoughts on Molina? I think like you said how successful he is in India, especially in India, and with his attitude and with the presence of mind he has, you know, on the field, क्या कब substitute करना है, क्या game idea रखना है, कैसी चीज़ें होनी चाहिए, I think he is really good in that. Plus the supporting staff he has, you know, they all are working hard because I don't think so without them, whether it's the Indian coach or the foreigner, whoever it is with him, I think they are really helping him, and with the confidence that he has and the experience, वो एक काफ़ी पॉजिटिव है टीम के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है स्पेशली उस लेवल पर। और उन्होंने तो इतना देख लिया इंडियन फुटबॉल, उनको पता है काफ़ी प्लेयर्स के बारे में स्पेशली इन इंडिया, और उस लेवल में भी उन्होंने एशियन में भी काफ़ी टीम्स को कोच किया है, तो उनको वो एक आइडिया भी है। आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट विल हेल्प अस टू बी देयर एंड टू प्ले दैट काइंड ऑफ फुटबॉल। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, एक देखिए जब आप सीन पे आए थे, सो ऑल ऑफ अस थॉट dazzling brilliance, बहुत talented. What are your personal goals? What is Anirudh Thapa looking forward to in the next 12 months as a footballer himself? To win all the trophies with Mohun Bagan, because I think that is something that very few people have done. Firstly it was to play for the club, because I don't think so it is easy to play for Mohun Bagan. It is easy to represent Mohun Bagan. बहुत आसान लगता होगा कहना कि भाई खेलना ही तो है, बट इट इज़ नॉट, क्योंकि ये जो क्लब है ये किसी भी प्लेयर को ऐसे तो नहीं साइन करता है और इतने टाइम के लिए तो नहीं रखता है, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, क्लब को क्या चाहिए, फैंस को क्या चाहिए, मैनेजमेंट को क्या चाहिए। तो वो जितना सुनने में आसान लगता है हाँ खेला ही तो है इतना साल, इट इज़ नॉट, क्योंकि वहाँ पता है द प्लेयर्स, द पीपल हु आर इनसाइड द क्लब, दे नो हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ हार्ड इट इज़ टू बी देयर टू प्ले एवरी गेम एंड टू विन ट्रॉफीज़। वो चीज़ बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि बहुत लोगों का इमोशंस इन्वॉल्व है उसमें। सिर्फ खेलना ही नहीं है कि नहीं हमने जाना है और खेलना है, मैच जीतना है, नहीं, इमोशंस इन्वॉल्व है, लोगों का पैशन इन्वॉल्व है। तो वो चीज़ आई थिंक दैट रियली मैटर्स। तो मेरे लिए पर्सनली यही रहेगा कि फर्स्टली टू स्टे फिट एंड टू प्ले फॉर द क्लब एंड ऑब्वियसली टू विन ऑल द ट्रॉफीज, बिकॉज लास्ट ईयर हाँ हमने डबल किया बट डूरन कप से मिस हुआ, उससे पहले हमने डूरन कप किया, ISL किया, बट अगेन कप से मिस हो गया, शील्ड जीत गए थे। तो ये जो हल्की मिसेज है वो कंप्लीट करना है, बिकॉज आई थिंक दैट विल बी आई थिंक समथिंग ग्रेट एंड एन ऑनर टू ये सब जीतना एक ही सीजन में। I think that is one of my aim right now. Last question, पूछा जा रहा है, मैंने शुभाशीष से भी ये सवाल पूछा। देखिए फैंस इस समय के लिए वेट करते हैं, थैंकफुली AFC मैचेस उसके पहले है, फुटबॉल रिज्यूम हो रहा है। सो मैसेज फॉर द फैंस, मैसेज एंड एनी मोहन बागान स्पेशल मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हो इन योर टाइम विद मोहन बागान। आई थिंक मेमोरीज काफ़ी हैं, लास्ट ईयर का अगर आप देख लीजिए, डबल जीता, फैंस वर देयर सपोर्टिंग थ्रू आउट द सीजन, वी वर विनिंग, वी वर लूजिंग, बट उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, वो सपोर्ट करते रहे। उससे पहले साल भी वो सपोर्ट करते रहे, और मुझे उम्मीद है वो आगे भी करते रहेंगे। वट एवर इट इज़, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट द पैशन फॉर द गेम, फॉर द क्लब, फॉर दैट जर्सी, आई थिंक वो है और वो हमेशा रहेगा। तो थैंक यू फॉर दैट, जितना भी आप हमें सपोर्ट करते हैं हमारे जीत में, हमारी हार में, क्योंकि वो सिर्फ हमें पता है कि वो हमारी नहीं, आप भी उतना ही इफेक्ट होते हो और कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा भी होते हो। तो वही है, आप बस सपोर्ट करते रहें ऐसे ही, और हम जर्सी के लिए विल प्ले फॉर इट, विल प्ले फॉर यू गाइस, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना हमें प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया है उसके लिए, एंड ऑब्वियसली फॉर द पूजा, दैट वी नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर द होल ऑफ बंगाल एंड वी ऑल्सो लव इट।
because that तो is पूजास में करते क्या हो? चीप डेज होता है, आके प्रॉन्स खाते हो, क्वेस्ट मॉल कुछ क्या करते हो यार तुम लोग? अनवाइंड कैसे हम करते हो? मैच में तो इतना obviously- इंटेंस रहते हो। क्योंकि फिटनेस ट्रेनर को पता है कि हाँ, बिकॉज व्हेनेवर वी गो ऑन टू द स्ट्रीट्स वी नो समथिंग इज स्पेशल, हमें दिख जाता है वो, तो ऑब्वियसली वी नो दैट इट इज पूजा, बट द फॉरेनर्स हु केम इन, उनके लिए थोड़ा रहता है कि भाई क्या है, क्या चीज़ है, इतना भीड़ क्यों है, लोग क्यों हैं, इतने एक्साइटमेंट क्यों है, इतनी लाइट्स क्यों हैं, तो उनको बताते हैं, फिर उनको पता है कि ऐसे ऐसे, देन दे आर ऑल्सो हैप्पी कि भाई ये होता है, दे ऑल्सो गो आउट, वी ऑल्सो गो आउट, एंड ऑब्वियसली वी कैन ट्राई द स्ट्रीट फूड जो कि Yeah. बहुत फेमस है, दैट इज समथिंग थोड़ा सा उसमें Have you रहता tried है। sweets? Yeah, sweets. I love sweets. I won't deny that. How do you keep yourself like this? It's a Should be fitness like this, trainer. you look like me if you have sweets. It's the medical team and the fitness trainer, you know, they make us run a lot. That I think we all know that. So that's why जब मैं घर जाता हूँ तो घर वाले कहते हैं कि कमजोर हो क्या आ रहा है, and I'm like नहीं फिट हूँ मैं। तो उनका वो रहता है थोड़ा सा, but हाँ, that is there. So I think we all are also waiting for that moment, you know, to go out. गाड़ियों में जाना, you know, to go out. Sometimes if we have an off, we go for the late night drives. तो वो चीज़ रहती है कि हमें मज़ा आता है कि यार देखिए हम भी कैसा है, तो दैट इज समथिंग। इस पे खत्म करते हैं। अगर आप AFC में जीत जाते हो तो इस बार मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशल पूजा पहले आ जाएगा आप लोगों के लिए पूजा, और सारे फैंस के लिए भी पहले आ जाएगा पूजा। बिल्कुल, बिल्कुल। बट घर जाके आपको कमजोर नहीं होना पड़ेगा, ज्यादा खिला देंगे आपको। बिल्कुल, वो मिठाइयाँ बस आ जानी चाहिए फिर तो। वो तो आएगा ही, 100% आएगा, ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाएगा। डन डन डन। बट थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you so टॉकिंग much. टू मी, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप गोइंग वेल। Thank you so much. थैंक यू।